evening to everyone. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. The subject matter of today's webinar is the Hult Prize 2021's Challenge Food for Good. I am your host Muhammad Shahrukh, and along with me is my co-host Muhammad Ramos Ayub. And we, as part of the organizing committee of Hult Prize IST, welcome you all. Before we kick off, let us first give a thorough introduction to the topic of the webinar. This year's Hult Prize Challenge is Food for Good, transforming food into a vehicle for change. That basically means that in 2021, Hult Prize is asking youth around the world to build viable food enterprises that will impact the lives of 10 million people by 2030, all the while creating jobs, stimulating economies, and completely reimagining supply chains. In order to achieve all that, it is imperative to reimagine the purpose of food to begin with. Food is the pillar of society, community, and the economy. It defines the human experience in its purest form. Increasingly, over the last few decades, however, food systems have just become a machine of extraction that reduce our well-being, weaken communities, and impoverish the world around us. To tackle these issues, it is important to start from the origin. The entire system must be re-established into a new one. This new system must be built around these four core principles. The first principle is how to properly distribute healthy, nutritious food. This basically covers the aspect of packaging and making sure that the food reaches the consumer from the producer in a safe and viable way. The second pillar is that there should be a security of food in times of distress. By that, what I mean is that we are in a global pandemic situation right now. There are a lot of communities that do not have access to food at this moment, and your business model should help these communities to have some sort of food for themselves. Your business model should help these kind of people. The third pillar is that there should be no net negative impact on the environment through food processing and its supply chain. This means that the carbon footprint of your business should be very low and it should not be high. Lastly, your business model should be able to reduce the wastage of food on a global level. So basically, your idea should be to help change or improve one or more aspect of the food supply link chain, which is growth, distribution, processing and storing, wholesaling, consumption, and finally disposing of. To talk on all these issues and more, we have the honor of presenting our esteemed guest, Mr. Safir Abbas Jafri, founder and CEO at Agri Education Pakistan. Mr. Jafri is an experienced CEO with a demonstrated history of working in the farming industry. He is skilled in sustainable development, corporate social responsibility, organic farming, trainings and skill development, landscaping, forest management, plant nurseries, public speaking, lecturing, and rural development. He is a strong entrepreneurship professional with a Master of Philosophy focused on forestry and rangeland management from PMAS Arid Agriculture University. His company, Agri Education Pakistan, is a social entrepreneurship venture whose objective is to offer sustainability in happiness, health, and economy by producing a new breed of agripreneurs. Sir Jafri, it is a great pleasure to have you with us tonight. Sir, before we proceed with the questions formally, please enlighten us with your brief opinion on this year's Hult Prize Challenge, Food for Good. Assalamu alaikum. Can you hear me, dear? Welcome, Islam. Yes, sir, we can hear you. Well, it's really delightful, really delightful to hear you guys and this about this opportunity and the way you are presenting this opportunity to the national cause of our crucial aspect of agriculture and food security. And it's not just a national matter, actually. It's the matter of survival. It's the matter of survival. We are discussing here the matter of survival in a very fancy and very decent way. And we are going to talk about the practicality of this prize, the Hult Prize,
competition and the ground realities of the all causes we are going to discuss here. So अभी के हवाले से, क्योंकि मैं ज़रा उर्दू में आना चाहूँगा, ये जो हल्ट प्राइस है इसको सादा ज़बान में या अगर तारुफी तौर पे बयान किया जाए, ठीक है, तो it's like a Nobel Prize for students. It's a prestigious thing. It's not just a prize, not just a competition. It's a Nobel Prize for students and a great opportunity for everyone because everyone is welcome to propose their business model here. And it's going to be a great opportunity for everyone to discuss, to propose efficient solution for the really crucial matter, the food security and the matter of survival, as I said before. So मेरे नज़दीक ये एक इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है. कुछ साल पहले ग्लोबल क्लीन टेक इनोवेशन प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया और अब मैंने देखा कि हल्ट प्राइस को भी साथ इसमें वेंचर कर रहा है यूनाइटेड नेशन. तो 2015, 2016 और 17 में भी काफी अच्छे वेंचर्स, काफी अच्छे स्टार्टअप्स जो थे, जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर बेस्ड थे, वो बहुत आगे है, बहुत अच्छा उन्होंने सॉल्यूशन दिया. इनफैक्ट हम भी उनमें शामिल थे, ठीक है. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. इसमें आपको जो मेंटरिंग मिलने वाली है, जो गाइडेंस मिलने वाली है, वो उसकी वर्थ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है ना. तो इसमें मैं चाहूंगा कि जो जो इस वक्त सुन रहा है इसको, या जिस जिस तक ये गया है और वो जानता है इस बारे में, तो जरूर इसमें अप्लाई करें. अगर आपका कोई आइडिया नहीं है, आपके पास कोई मॉडल नहीं है, आप सोच रहे हैं कि क्या करें भाई, अगर हम स्पेस साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम फूड फॉर गुड में क्या जाके करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू आर अ नेचर बीइंग, यू कैन सर्व द नेचर, ठीक है. तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है. अगर आप कुदरत का हिस्सा हैं तो आप कुदरत को सर्व कर सकते हैं, ठीक है. तो हम इस पे आगे भी मजीद तफसीलन बात करेंगे कि किस तरह से किन वेंचर्स में आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, आपको कितनी इसमें नॉलेज चाहिए, कितना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है. आप किस तरह से बिजनेस मॉडल जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये तमाम जो है एस्पेक्ट हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे. मैं समझता हूँ कि हल्ट प्राइस के हवाले से अगर हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा और मजीद से मजीद बात होती चली जाएगी. तो मेरे ख्याल में अब प्रैक्टिकल क्वेश्चनिंग की तरफ आना चाहिए ताकि हम जो है उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं हंट प्राइस के, उसके ऊपर जो है हम बातचीत कर सकें और जो हमें सुनने वाले हैं उनको भी बेहतर रहनुमाई मिल सके कि वो विदाउट एनी बोटेनिकल और एग्रेरियन बैकग्राउंड कैसे वो अपना जो है एक वेंचर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, या किस तरह से एक एफिशिएंट मैनेजेरियल सॉल्यूशन दे सकते हैं इसमें, या किस तरह से वो इसमें कुछ भी इनपुट दे सकते हैं. द थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जरूरी नहीं है कि आपने जीतना है, ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपने जीतना है. डोंट ट्राई टू बी बेस्ट, जस्ट बी अ पार्ट, just be a part. And if you are natural, if you are a natural being, okay, you don't need any a high-fi skill set to serve the nature, okay. You just need a spirit. So dear, मेरे ख्याल में आगे बढ़ा जाए, क्या ख्याल है, या उस पे और रोशनी डाली जाए मामलात पे? नहीं सर, आपकी बात बहुत अच्छी है कि if you are from nature, you can serve nature. I completely agree with it. Sir, now we move on to the questions that we have for you for today's webinar. Sir, the first question is, since you belong to an agrarian background, the food sector, as you know, has a very long supply chain. So where do you see business opportunities in these chains? What are the areas that we should target to make a sustainable, profitable business? Well, in any business, supply chain is one of the crucial part which ensure the sustainability of that business. Okay, if we talk about the agri-business, so the supply chain management, let me define it. Okay,
Supply chain management implies managing the relationship between the business responsible, the producer, or anyone who own the business for the efficient production and supply of products from the farm level to the consumer to meet consumers' requirement. So what are the consumer requirements? Uh, Consumer requirements are reliability in terms of quantity, quality, and price. The three things. Okay. So in agriculture, हम जो है हमारे जो कस्टमर है, मतलब हम सादा अल्फाज में बता दूं तो कि एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, ठीक है, और प्रोड्यूसर ने क्या इंश्योर करना है? क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस, ठीक है। अब हमारी तमाम सप्लाई चेन इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब सप्लाई चेन में आगे क्या आएगा? प्लान है, आपका सोर्स क्या है, ठीक है, इसमें आपका प्लान शामिल है कि आपने करना क्या है, ठीक है। फिर आपका सोर्स है, इसमें आपकी प्रोडक्शन है, फिर आपने डिलीवर कैसे करना है, डिलीवर, और फिर उसके बाद रिटर्न में आपका फीडबैक है या आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग, ठीक है। ये तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तान की जहां तक बात है तो सप्लाई चेन में बहुत बहुत ज्यादा इसमें बेहतरी की जरूरत है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और जहां पर बेहतरी की जरूरत होती है वहां पे अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को मोनेटाइज करते हैं या उसको ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है। या अगर कोई अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली एवरी प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मुझसे एक जवान ने ऐसे ही, एक पूछने वाले ने सवाल किया, अगर इजाजत हो तो, ठीक है। उसने कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ से मतलब बाहर बहुत कुछ है। तो मैंने कहा कि असल में बात ये हो रही थी कि सफीर साहब आपको जरा बाहर भी निकलना चाहिए, दूसरे बाहर अपॉर्चुनिटी है, दिस एंड दैट, लॉट ऑफ यूजुअल गॉसिप्स लाइक थिंग, ओके। सो उन्होंने कहा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलें भाई, बताइए कि एक खाली मैदान है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे कुछ करो तो क्या करोगे? तो उसने कहा कुछ भी। तो मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एवरी प्रॉब्लम इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी, और यही फर्क होता है बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में, ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो एक इंसान के मिजाज का हिस्सा है, ठीक है। इवन एक एम्प्लॉय रहकर भी आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को जो है अचीव कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन की अपॉर्चुनिटीज की बात है, हमारे यहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सप्लाई चेन के नाम पे सिर्फ एक ही एंटिटी नजर आती है, ठीक है, और वो है मिडल मैन, आढ़ती भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और वो मिडल मैन जो है वो किसान का तमाम तर जो मामलात हैं, जो उसकी फसल की सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के तमाम मामलात और सप्लाई चेन तक भी जो है वो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास पाकिस्तान में अप टू 60% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो अप टू 5 एकड़ हैं, इवन के कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 1 से 2 एकड़ तक की जमीन है, ठीक है। अब उनके पास इनपुट्स के लिए अखराजात नहीं होते, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो मिडल मैन के पास जाते हैं, उनसे उधार वगैरह तमाम चीजें ले लेते हैं, और फिर जो वो सोइंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, फिर जो हार्वेस्टिंग होती है, जो यील्ड होती है, फिर प्रोडक्शन होती है, वो भी उसी साहब के हवाले का। बात हो रही थी मिडल मैन के बारे में। तो मिडल मैन जो है उसकी गमी खुशी का हिस्सा है किसान की। उसके घर में कोई अच्छा, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एग्री बिजनेस की, और हम किसान को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसान हमारे जो है ये यूनिट है हमारे एग्रीकल्चर का, ठीक है, और एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और अगर यूं कहा जाए कि एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो फार्मर जो है
उसके मसाइल जो हैं, उसकी गमी खुशी का जो हिस्सा है, सारा दारो मदार इस मिडल मैन पे। मतलब अगर कोई उसके घर में किसी की शादी है, बच्चे की, बच्ची की, तो उसके अखराजात भी जो है वो मिडल मैन से जाके लेता है। कहता है कि भाई जब कल्टीवेशन होगी, जो हार्वेस्ट होगा, जो प्रोडक्शन आएगी, वो हम उसमें से आपको पैसे बकाया दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके एक किसान की पूरे जो लाइफ में जो एक सप्लाई चेन का भी जो मामला है, गमी खुशी से लेके उसके बिजनेस तक को मिडल मैन जो है वो सारा कुछ मैनेज कर रहा है। और उससे कर्जा लेकर जो है उसने पेस्टिसाइड ली, उसने फर्टिलाइजर दी, उसने बीज भी दिया, और फिर जो प्रोडक्शन आई उसने भी वो खरीद ली उससे, किसान से। ठीक है। अच्छा, अभी इधर बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, कि हमारे फार्मर के एंड पे भी उसको भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में ट्रेन करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारा एग्रीकल्चर का एक अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है, जो कि ज़रिए तोसियाती सरगर्मियां उसकी हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। दोबारा दोहरा दूं कि मिडल मैन जो है गमी खुशी से लेके सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक जो है वो तमाम तर काम जो है वो मिडल मैन कर रहा है किसान का। ठीक है, अब ये एक तरह का प्रॉब्लम भी है। एक तो ये आसानी है, बाहिर सुनने में बड़ा आसान लगा कि एक ही बंदे के पास जाओ ना, आपको लोन भी मिल गया, आपको इनपुट्स भी मिल गए, फार्म इनपुट्स वगैरह। अच्छा, फार्म इनपुट्स किसके कहते हैं? फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, सीड्स वगैरह, ये तमाम चीजें जो हैं ये फार्म इनपुट्स में आती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें वो उधर से आ गई। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि मिडल मैन जो है वो बहुत ज्यादा रेट चार्ज करता है। ठीक है, जब वो बेच रहा होता है, लेकिन जब वो किसान से खरीदता है तो फिर जो है वो अपनी मनमानी कीमत पे ले लेता है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो एक जर्नल प्रैक्टिस देखने में आती है ना, वो इस्तेहसाल की नजर सूरत में ही नजर आती है। ठीक है, वो वैसा होना नहीं चाहिए। नतीजतन क्या होता है, फिर बाज़-औक़ात सिचुएशन इस हद तक आ जाती है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की जो मार्केट है वो बहुत वोलाटाइल है। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि आपका अगला सीजन जो है उसमें प्रोडक्शन की रेट क्या लगने वाला है, उसकी प्राइस क्या मिलने, आपकी इनकम क्या होने वाली है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे आती हैं आपके? आप फार्म इनपुट्स में, सप्लाई चेन के जो सेगमेंट्स हैं उसमें फार्म इनपुट्स में आप आ सकते हैं, आप प्रिसाइज एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर एक न्यू वेंचर है जो कि दुनिया तो 1968 से उस पर काम कर रही है, लेकिन हम आज इस काबिल हो पा रहे हैं, और अभी भी बल्कि यूं कह लें कि पाँव पाँव चल रहे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर के हवाले से। ठीक है, लेकिन बड़े अच्छे स्टार्टअप्स जो हैं इसके हवाले से मौजूद हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो देर आर नंबर ऑफ वेंचर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सो देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देर आर नंबर ऑफ वेंचर्स इन सप्लाई चेन, लाइक सीड्स हैं इसमें, इसमें फार्म इनपुट्स हैं, फार्म मैनेजमेंट है, प्रिसाइज में ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, इसमें फिर कंज्यूमर एंड पे जो है होम डिलीवरीज वगैरह, अगर हम इसको भी मैनेज करना चाहें, तो आप जिसको जिसको जितना एफिशिएंट बनाना चाहें, हमारे पास उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आती जाएंगी। ठीक है, तो देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स अवेलेबल इन सप्लाई चेन। तो क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बताया सिर्फ एक मिडल मैन है, ठीक है, जो कि तमाम तर दर्द की दवा कर रहा है। ठीक है, तो जो जितने भी वेंचर्स हैं, प्रिसाइज कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसकी जगह हमें प्रिसाइज एग्रीकल्चर लेकर आएंगे, तो वो जो किसान के एक इस्तेहसाल वाला है। अच्छा, इसमें फिर फार्मर मार्केट का एक वेंचर बड़ा मौजूद है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम इंशाल्लाह अगले जो आप सवाल पूछने जा रहे हैं उसमें मजीद हम इसको इस पे रोशनी डालेंगे कि सप्लाई चेन के, ये तो एक सरसरी सी बात हो गई कि एक मिडल मैन सिर्फ एक मौजूद है, बाकी जितने भी मामलात हैं वो हल तलब मौजूद हैं। ठीक है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी हमने जरा सी बात कर ली, और मजीद जो उसमें वेंचर्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं उस पर भी हमने एक सरसरी सी बात कर ली। तो अभी इसमें मजीद कोई सवाल वगैरह हो तो सुनने वाले कमेंट्स में जो है इसको सवाल पूछ सकते हैं, तो हम आई थिंक उसको शामिल कर लेंगे साथ ही। तो अगले सवाल की तरफ जाने के बारे में क्या ख्याल है?
Yes, sir. Sure. क्योंकि सर हमारे पास टाइम के भी थोड़ा कंस्ट्रेंट है. We'll move on to the next जी हाँ question. जी So second question for you is what are the most important aspects that startups related to food sector should keep in mind? फूड सेक्टर में जैसा कि पहले बात हुई कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इस वजह से क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा है ठीक है ना। और एक एंटरप्रेन्योर अगर आप कोई भी बिजनेस आप फूड में शुरू करना चाह रहे हैं, आप किसी भी हवाले से जो है आप एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट हैव एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आपके अंदर सब्र होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है, आप को गर्म दिमाग होना जो है वो आपको मतलब आप यूं कह लें कि आपको अर्तुरुल बनना पड़ता है, ठीक है, इट्स लाइक दैट ठीक है। तो आप में मतलब दूरअंदेशी भी होनी चाहिए, और ये ऐसा कोई नहीं है कि नो वन इज बेस्ट एट हिज ऑन 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 हिज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसमें जो है आपको कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, कई मामला देखने पड़ते हैं। मैंने बहुत रिसेशन देखा, ठीक है, फिर अब जैसे कोविड-19 की एक सिचुएशन चल रही है, तो इसने मजीद अपॉर्चुनिटीज पैदा कर दी हैं, ठीक है। तो अब फूड सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सप्लाई चेन अगेन अ क्रूशियल फैक्टर, ठीक है। सप्लाई चेन किसी भी बिजनेस की, किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन ही एक वाहिद चीज है जिससे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है। और अब कस्टमर को क्या चाहिए? उसको क्वांटिटी चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको प्राइस चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी कंपिटेंट है, ठीक है, आपकी क्वांटिटी कंपिटेंट है, आपकी प्राइस कंपिटेंट है, यू आर गोइंग टू बीट द मार्केट, ठीक है। ये एस्पेक्ट जो है आपने कोई भी बिजनेस मॉडल डिजाइन करना है फूड से रिलेटेड बिलखसूस, और दीगर किसी भी शोबे से मुतालिक अगर आप एंटरप्रेन्योरियल वेंचर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने ये तीन चीजें जो है, चाहे आप प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ये तीन चीजें जो है ये आपका आपको जो भी आपने बिजनेस प्लान डिजाइन करना है, इन तीन चीजों को महवर बना के, ओरिजिन बना के, उसके इर्द गिर्द जो है आपने अपना पूरा आइडिया जो है जनरेट करना है, ठीक है। तो कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले, कोई भी आइडिया मोनेटाइज करने से पहले इन तीन चीजों को अपने जहन में रखें कि अगर फिलहाल बद्दा जो है दूध जो है फुल क्रीम जो है 120 रुपए लीटर दे रहा है होम डिलीवरी के साथ, तो मैं एक ऐसा क्या करूं कि होम डिलीवरी भी मैं भी दूं और मेरी प्राइस कम हो, या मेरी प्राइस ज्यादा भी हो तो मैं ऐसी कौन सी वैल्यू एडिशन इसमें करूं। उसमें फिर ये भी हो सकता है कि आप फ्लेवर्ड मिल्क बनाना शुरू कर दें, फ्लेवर्ड योगर्ट बनाना शुरू कर दें, ठीक है। इसमें फिर सुपर फूड का एक बहुत बड़ा वेंचर है, उसको एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। उस पर पाकिस्तान में अब माशाल्लाह अच्छा खासा काम शुरू हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीजें, क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस, कोई भी आइडिया जनरेट करने से पहले और उस आइडिया जनरेशन के दौरान आपका ओरिजिन जो है ये तीन पॉइंट्स होने चाहिए, और ये आपको जो स्टार्टअप है फूड सेक्टर रिलेटेड या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, आपको ये उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस। सर हमारे पास सवालों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आज आपके लिए, तो आई होप हम आपको नहीं, कोई थकाएंगे नहीं मसला आज। नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं नहीं थकता। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और यूएस जैसी कंपनी जिनमें टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क है, क्या उसमें पाकिस्तान के पास कोई एज है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है? तो आपको क्या लगता है? जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जहां पे मसाइल ज्यादा होते हैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास चीजों की बेहतरी, लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट्स भी हैं, उसमें लिमिटेशंस भी हैं, हमें उसमें बहुत सी चीजों को मद्देनजर भी रखना है, क्योंकि हम जिनको सर्व करने जा रहे हैं वो सबसे पहले जो है हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको। अब हमारा जितने भी फूड सेक्टर के मामलात हैं, ठीक है ना, आप कोई भी बेवरेजेस की इंडस्ट्री बना लें, आप कन्फेक्शनरी का कोई वेंचर स्टार्ट कर लें, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, या कोई फार्म से रिलेटेड आप कोई इनोवेटिव सर्विस आप स्टार्ट करें, तो आपको फार्मर से वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता आपको राब्ता पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके जब तक फार्मर आपका स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है,
तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे अल्टरनेट करने पड़ेंगे कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो सस्टेनेबल रहे। हमारे यहाँ मशरूम के हवाले से सप्लाई चेन का जो है सिचुएशन अब आगे थोड़ी कोई बहुत बेहतर होती रही है, नहीं तो 1970 में मशरूम इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में, खुम्बी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इट्स अ वेरी लिक्रेटिव बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन सप्लाई चेन की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से वो मामला नहीं होता। अब वो क्यों नहीं हो सके, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास एज है, और क्या क्या एज हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और फिर अमेरिका की भी बात करते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान के पास एज ये है कि यहाँ पर बिजनेस करना आसान है। अब इसको लीगल टर्म्स में मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लें, ठीक है, आपके पास जो है अब गवर्नमेंट ने भी काफी आसानी कर ली है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं, स्मेडा बहुत स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास एक फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। हमारी जो लिमिटेशन आ जाती है वो यहाँ पे आ जाती है कि हम जब किसान की बात करते हैं या हम जिससे माल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे मसला सबसे पहले किसान के एंड पे ये आता है कि आप अगर उनको कहेंगे कि आप हमें मरवा उगा कर दें, हमने उसका सेंट निकालना है और वो सेल करना है, ठीक है। तो मरवा एक पौधा होता है जिससे बहुत ही एसेंशियल ऑयल्स बहुत खुशबूदार उसके होते हैं, ठीक है, और सेंट वगैरह बनाने में, परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं। तो मिसाल दे रहा हूँ एक, तो वो आपको ये कहेगा कि भाई हमारे आबा अजदाद से जो है गंदुम ही उगा रहे हैं तो हम गंदुम ही उगाएंगे, और ये बड़ी मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये अक्सर होता रहता है। हमें फील्ड में हम जाते हैं ना, जो हम सुपर फूड्स की बात करते हैं, सुपर क्रॉप्स की बात करते हैं, क्लाइमेट अडॉप्टिव वेंचर्स की बात करते हैं, तो वो ये एक हमें लिमिटेशन आती है। इसको टैकल कैसे करना है, इस सिचुएशन को कर्व कैसे करना है, वो ऐसे, सेइंग इज बिलीविंग। आपने मार्केट में जाना है, आपने एक कोई ना कोई साथ प्रोटोटाइप लेके जाना है, प्रोडक्ट लेके जाना है, एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस लेके जानी है फार्मर के एंड पे, वो फिर आपका बड़े अच्छे से यकीन करेगा। नो डाउट प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अप टू 60% जो है हमारे पास स्मॉल फार्मर्स हैं और बहुत कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं, तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। अदरवाइज अमेरिका की निस्बत पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है, यहाँ पे काम करना जो है आसान है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आसान है लीगल पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। अब आप देखें, अगर आप कोई नर्सरी का काम शुरू करता है, ठीक है, या वेजिटेबल नर्सरीज ग्रो करना शुरू करता है, उसकी आगे सेल करता है, और जैसे कि हमारे पास हैं कई वेंचर इस तरह के जो कि इस तरह के काम करते हैं, भाई नर्सरी, फ्लावर, सीजनल फ्लावर्स की नर्सरी कर ली, वेजिटेबल नर्सरीज हैं, तो अब आप प्लांट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन बाहर जो है वो अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एजुकेशन एंड पे हमारे पास लिमिटेशन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी एंड पे हमारे पास एज है कि पाकिस्तान में जो है अभी एक तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, कंपटीशन अब बनना शुरू हो रहा है, जैसे कि हल्ट प्राइस आया, जी सिप गुजर गया, ठीक है, और इस तरह के जो ग्लोबल वेंचर्स हैं, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल एप्रिशिएशन एप्रिशिएबल फॉरम्स हैं, ठीक है, वो अब इन चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और आप जैसे ग्रेट माइंड्स जो हैं उसको पिकअप कर रहे हैं, तो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होने के लिए जा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाहर से बहुत बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है जी। आगे। That's great to hear, sir. And definitely बहुत difference है दोनों countries में. So moving on to our next question, sir. Sir, organic based food और processed based food में आप इनके बीच में जो इनका जो business होता है, how would you compare the two? And would you say that one of them is better than the other or not? अच्छा, ये इन अ प्रैक्टिकल वे ये बहुत ही दो डिफरेंट वेंचर्स हैं, ठीक है, और दोनों ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फूड जो है ये डिपेंड करता है वे ऑफ कल्टीवेशन पे, ठीक है, जबकि जो प्रोसेस्ड फूड है ये वे ऑफ कल्टीवेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ये जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड में जो है वो कंप्लीट एक वेंचर है पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्क है,
ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना काफी मुश्किल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी जमीन पर कोई फर्टिलाइजर डाला, जहर डाली इस तरह की, ठीक है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड आपने यूज किया, ठीक है, तो जमीन के टेक्सचर के मुताबिक अगर वो मतलब क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है, ठीक है, तो उसके लीच डाउन करने के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि उसके बाद उस पे उगने वाला जो क्रॉप होगी वो ऑर्गेनिक होगी या नहीं होगी। ये थोड़ा एक टेक्निकल चीज है कि अगर क्लेई सॉइल है तो उसके अंदर जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज हैं वो खत्म होने में 10 साल भी लगते हैं। ठीक है, तो 10 साल के लिए आपने जमीन के ऊपर कुछ नहीं करना, 10 साल के बाद आप जो क्रॉप लगाएंगे। इसी तरह सैंडी सॉइल में जो है, जो रेतली मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें रेत की मिकदार ज्यादा होती है, तो उसको आप 3 माह के बाद भी जो है अगर उसके ऊपर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, कल्टीवेट नहीं करते उसके ऊपर कुछ, तो आप 3 माह के बाद भी उसके ऊपर जो है वो जो ग्रो करेंगे वो ऑर्गेनिक में कंसीडर हो सकता है। इसके लिए कई वेंचर्स मौजूद हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन मौजूद हैं जो कि ऑडिट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट गाइडेंस भी है और सर्टिफिकेशन भी देते हैं। इसमें ग्लोबल गैप भी है, ब्यूरो वेरिटास है, और इसी तरह से थर्ड पार्टीज और भी मौजूद हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में अगर बात कीजिए ना, ये जो आपको ऑर्गेनिक फूड नजर आ रहा होता है, ठीक है ना, ये अगर बहुत भी अच्छा होता है तो सेमी ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, या नेचुरल फूड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रेयरली आपको मिलेगा क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन जो है वो काफी मुश्किल है। ठीक है ना, उसके ऊपर वो टाइम कंज्यूमिंग है वो काफी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता या ये है, बहुत है। अच्छा, फिर इसमें जो है अगर आप बाहर के ममालिक में देखें, हमारे पाकिस्तान में भी अब एक अलग जो है रैक लगा हुआ होता है ऑर्गेनिक स्टफ का। ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो दूसरे से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर ये नेचुरल है, अगर ये सेमी ऑर्गेनिक है, तो ये फिर भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ये फिर भी आप कह लें कि ऑर्गेनिक जो है वो तो एक टेक्निकल टर्म है। ठीक है, होता तो यही है कि पहले वो नेचुरल क्रॉप होती है, फिर वो सेमी ऑर्गेनिक होती है, फिर वो ऑर्गेनिक का लेवल अचीव करती है। ठीक है ना, तो उसकी प्राइस जो है वो बहुत बेहतर होती है दूसरी सिंथेटिक सिंथेटिकली रेज्ड क्रॉप की निस्बत। ठीक है, जहां तक बात है प्रोसेस्ड फूड की, ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो चाहे आपका सिंथेटिक क्रॉप हो या ऑर्गेनिक क्रॉप हो, उसमें वैल्यू एडिशन जब आप कर लेते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने दूध की बात की, जो आप कर रहे हैं उसमें ये है तरीका कि पहले आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए। ठीक है, फार्मिंग जितनी भी होनी चाहिए वो नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए क्योंकि वो क्लाइमेट अडॉप्टिव भी है। हमारे यहाँ एक बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही बहुत महंगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब नेचर की हार्मनी में चल रहे होते हैं तो नेचर आपको असिस्ट करता है। ठीक है, और हमारे एग्री एजुकेशन पाकिस्तान में जितने भी वो इस इदारे के तहत जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ये जितने भी, तो हम नेचुरल फार्मिंग का जो है उसमें ज्यादातर हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है, उसके अखराजात भी कम है। ठीक है, और ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टेढ़ा मेढ़ा सब जो फल पड़ा होता है जी वो ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है, नेचर खूबसूरत है। ठीक है ना, नेचर का भी टेढ़ा मेढ़ा सा इस तरह सा जो है वो मतलब मेरा जहन नहीं मानता, टेक्निकली एस्थेटिकली मेरा जहन नहीं मानता। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने एक तरह जब बात होगी फूड प्रोसेसिंग की, ठीक है, वैल्यू एडिशन की, जैसे आपने बात हुई फ्लेवर्ड मिल्क की, तो आपने फ्लेवर्ड मिल्क बना लिया तो आपकी वैल्यू एडिशन होगी, अब उसकी प्राइस एक खालिस दूध की जो अनफ्लेवर्ड मिल्क है उसकी निस्बत उसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, इसी तरह फिर जब आप मशरूम की बात करते हैं, मशरूम की जो अपनी शेल्फ लाइफ है वो काफी कम है। ठीक है, अगर कुछ प्रोसेसिंग कर लें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक सप्लाई करके तो वो 22 दिन तक हो जाती है तकरीबन। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका अचार बना लें, ठीक है, आप उसका पिकल तैयार कर लें, तो उसके जो है उसकी प्राइस भी ज्यादा हो जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ल्यूक्रेटिव हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे अगर आपके पास ऑर्गेनिक फूड आ गया और फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग की, तो वो फिर एक और मतलब वैल्यू एडिशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब सिंथेटिकली ग्रोन फूड प्रोसेसिंग और ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये तो और प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दोनों वेंचर ही अपने आप में जो है बहुत लिक्रेटिव हैं और बहुत ही पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अब काफी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आती चली जा रही हैं और फूड प्रोसेसिंग की तरफ भी जो है
कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बिलखसूस हमारे पास ये गिलगित बल्तिस्तान और इस तरफ जो है फूड प्रोसेसिंग की बहुत जरूरत होती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के हवाले से। ये एक आपको हिंट दे रहा हूँ, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में खुबानी, आलू बुखारा और इस तरह के कई अच्छे फल जो हैं वो बहुत ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो कंज्यूमर तक जाने से पहले, ठीक है ना, काफी गल सड़ जाते हैं। तो उसके लिए वहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो ड्रायर्स जो हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सुनने वाले हैं इसके ऊपर भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या उनके पास इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी यस सर। सर इससे आपने काफी बहुत डिटेल्ड जवाब दिया और मैं इससे काफी हद तक मतलब मुझे काफी चीजें इसमें नई सुनने को मिली है जो मुझे पहले नहीं पता थी। सर अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना वो इस तरह का है कि वो मुझे वो चारों इन सब लोगों के लिए ना बहुत फायदेमंद होगा। और वो ये होगा कि सर अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम बॉटनी वगैरह नहीं पढ़ते, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे हम भी फूड सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सके? और सर मतलब ये कोई रिकमेंडेड पाथ है जो हमें सबको लेना पड़ेगा इसमें इनोवेशन के लिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आम तौर पे जहन में यही आता है, ठीक है ना। आप किसी भी बिजनेस फील्ड में जा रहे हो, किसी भी शोबा से मुंसलिक होने के लिए जा रहे हो, तो कहा जाता है कि पहले आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे यहाँ प्रोफेशनल डिग्रीज भी मौजूद हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर रिलेटेड या अलाइड फील्ड्स की, ठीक है। तो क्या आप लोग ये कर सकते हैं? तो जनाब आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इफ यू आर अ नेचुरल बीइंग यू कैन सर्व नेचर, यू कैन सर्व द नेचर, ठीक है। तो अगर आप कुदरत का हिस्सा हैं तो आप कुदरत को सर्व कर सकते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर है ये कुदरत का ही हिस्सा है, मतलब द ग्लोबल कल्चर इज एग्रीकल्चर, ठीक है। हम सब इससे मुंसलिक हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कैसे करना है, ये नहीं करना, मतलब बीज कैसे उगाना है या कल्टीवेट कैसे करना है, अच्छा इसी को जो है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कैटर करने के लिए हमारा एग्रीप्रेन्योरशिप का जो एक स्लोगन है वो यही है कि यूथ को मद्देनजर रख के जो है तैयार किया गया, ठीक है। कि विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान्स दिए जाएं कि स्टूडेंट अपने पॉकेट मनी से भी मैनेज कर सके, लिटरली पॉकेट मनी से। आप 5,000 से भी अपना मशरूम का बिजनेस छोटा सा चला सकते हैं, ठीक है, एक खास स्केल तक, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे पास मौजूद है और हमारा काम है यही कि एजुकेट करना। 2 से 3 सफ़ों का एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मैनुअल जो है हम फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। और वो 2 से 3 सफ़े ही आपके लिए काफी होते हैं। कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि मतलब अच्छा इसमें फिर अगर आप इसमें एंटर होते हैं, ठीक है, तो आपको टेक्निकल हेल्प कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। अगर आप कोई फसल तैयार करने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए जो है जा रहे हैं तो आप कहीं से बीज खरीद को इसका मुकम्मल इस्तेमाल बताएगा। इसी तरह अगर आप कोई और इनपुट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वो आपको कंप्लीट 0 to 10 जो है, 0 to 100 जो है आपको वो गाइड करते हैं। क्यों इसका ये इस तरह से ट्रेंड क्यों है? एक तो ये मार्केटिंग एटीट्यूड है एग्रीकल्चर में, ठीक है, कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो गाइड करते हैं। दूसरी चीज कि हमारा फार्म जो है वो अनएजुकेटेड है, ठीक है ना, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके पास बस ये बरसों बरस का जो है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब अगर कोई मार्केट में कोई इनोवेशन आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो वो उसकी A to Z जो डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं तमाम तर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, करना क्या है पता कहाँ से चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्मेडा जा सकते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जा सकते हैं, उनका एक एक चीज के ऊपर डिटेल्ड बुकलेट्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो फील्ड ही ऐसी है कि जिसके अंदर जो है मतलब हर कोई एलिजिबल है एंटर होने के लिए। तो ये बात अपने जेहन से निकालिए, ये बात जेहन से निकालिए, कॉन्फिडेंट हो जाए, बिल्कुल हल्ट प्राइस के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। कि अगर आपकी डिग्री इससे रिलेटेड नहीं है तो डजंट मैटर, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन डू एग्रीकल्चर। यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम श्योर आपका ये जो रिस्पॉन्स है इसने हमारी ऑडियंस को काफी मोटिवेट किया होगा, सिंस हम लोग सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सो दिस मस्ट हैव गिवन देम a lot of motivation. So sir, moving on to our last question of the webinar.
from your experience as being an agri consultant, क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट पढ़ी थी और उसमें आपने मेंशन किया था that you guys also offer consultancy. So what issues do you feel are most commonly faced by people in the agriculture sector? और इन सारे कॉमन इश्यूज का क्या सॉल्यूशन आप लोग ऑफर करते हैं? बिल्कुल, इसमें जैसे कि हमारा इदारा जो है वो R&D और कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। R&D में हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के हवाले से और नेचुरल फार्मिंग के हवाले से और नेचुरल इनपुट्स के हवाले से जो है उसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें अभी हम 22 नवंबर को जो है हम मशरूम फेस्टिवल, नेशनल मशरूम, एक्चुअली 7th नेशनल मशरूम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं काला शाकागू वाली साइड पे, ऐसे गार्डन्स का वेन्यू है, ठीक है। तो उसमें हम अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं जो कि नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट है और वो मशरूम से तैयार किया हुआ, ठीक है। उसके कोई रेजिडुअल इफेक्ट्स नहीं है, उसके कोई इन्वायरमेंटल बैड इम्पैक्ट नहीं है, ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इस तरह के हमारे चल रहे हैं। अब हमें एज ए कंसल्टेंट जो है वो फील्ड में क्या देखना पड़ता है, तो वो तो है फार्मर का एटीट्यूड, ठीक है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो तो उनको सलाम है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशा। लिमिटेशन है जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो तो उनको तो सलाम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अप टू 60% हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है वो स्मॉल होल्डिंग्स पे है, ठीक है। उनके पास ज्यादा एकड़ेज नहीं है, जमीन नहीं है, तो उनके उनके हिसाब से हमें जो है कई बार ये देखने को मिलता है ये चीज, कभी हमारे बड़ों ने ये नहीं किया था, हम ऐसा क्यों करें, ठीक है। लेकिन अब मसाइल जो हैं, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन एंड पर ही नहीं है, अब हमारे पास क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है। हमारा जो रेनिंग सीजन है, रेनिंग स्पेल का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो चुका है, हमारी सर्दियां जो हैं, विंटर सीजन जो है वो आगे को शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और मतलब 15 से महीने तक का फर्क इसमें पड़ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, अभी आपने अक्सर सुना होगा खबरों में कि गंदम की कटाई के वक्त अक्सर बारिश हो रही है पिछले 2-3 सालों से, ठीक है। तो ये चीज वो है कि जिसके प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम का हल होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्लाइमेट अडॉप्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शामिल हैं, उसमें प्रिसाइज एग्रीकल्चर शामिल है, उसमें जो है सुपर फूड जो है उनकी कल्टीवेशन शामिल है। सुपर फूड्स वो होते हैं जो कि बहुत ही हार्डी नेचर के प्लांट्स होते हैं और उसकी न्यूट्रिशन भी जो है वो हमारी कन्वेंशनल क्रॉप से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये मसाइल हैं और उनका हल ये है, मतलब रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला एजुकेशन एंड पे है, ठीक है। दूसरा बड़ा मसला जो है हमारा क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है। तीसरा बड़ा मसला हमारी अनस्टेबिलिटी ऑफ और एग्री मार्केट है, ठीक है। कभी टमाटर जो है हमारा 450 रुपए किलो हो जाता है, कभी 2 रुपए किलो हो जाता है, ठीक है। तो ये वो वेंचर्स हैं जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट अडॉप्टिव एग्रीकल्चर जो है वो किसान को सिखाना, वो करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रिसाइजली फार्म मैनेजमेंट करना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऐसे कन्वेंशनल फार्मिंग में ये चीजें मौजूद नहीं है, ठीक है। हालात बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, मार्केट बदल रही है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वैसे का वैसे कन्वेंशनल है, जैसा कि मुद्दतों पुराना था, ठीक है। जैसे अभी मतलब आप इसमें बड़े सगीर के बनने से पहले भी की जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उसमें अभी भी जो है वो मतलब मैं कह रहा हूँ बड़े सगीर के बनने से पहले जो प्रैक्टिसेस चल रही थी वो अभी भी चल रही है। ये मुबालगा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बता दूं, बावर करवा दूं कि ये बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है ना। अब गंदम की जगह हमारे पास कई अच्छी क्रॉप्स आ गई हैं, उसमें हमारे पास किनवा है, चिया है, अवोकाडो है, इसके अलावा जो है हमारे पास एग्जॉटिक वैरायटीज भी हैं। हम जो ग्रोइंग मेथड हैं, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत चेंज हो गई हैं। हमारे यहाँ चावल जो है वो तकरीबन 1-1, 2-2 फुट पानी के अंदर लगाया जाता है, जबकि आप डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू विदाउट एनी वाटर लॉक कंडीशन आप राइस कल्टीवेट कर सकते हैं। तो अब रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट होती जा रही है। तो ये चीज है, हमारे पास सोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे पास एक एटीट्यूड है कि हम सोल्यूशंस को बहुत वार्मली वेलकम नहीं करते, तो ये एक मसला है जो कि हम फील्ड में देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आप जैसे ग्रेट माइंड्स के लिए
कि आप इसमें जो है डिजिटल, क्योंकि अब एंड्रॉयड एप्स हर एक की अप्रोच में है, हर एक की एक्सेस में है, स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है ना। तो इसमें कई डिजिटल एग्रीकल्चर का वेंचर जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ऐसी एप्स भी हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान में भी, कि आप जो है मोबाइल से ही तमाम डाटा अपने फार्म का मैनेज कर लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये एजुकेशन एंड पे हमें मसाइल देखने पड़ते हैं, और मार्केट एंड पे, और जो कुदरत है क्लाइमेट चेंज की वो तो सो है, ठीक है, और इनके सोल्यूशन भी मौजूद है, ऐसा नहीं है, ठीक। हम यही कर रहे हैं कि सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो मसाइल इसलिए डिस्कस नहीं करने चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे इश्यूज की बात हमने नहीं की, कि वो इश्यूज की बात हमने इसलिए नहीं की कि इनसे डर जाए या इनसे बच के कोई आइडिया बना ले, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ये इशू ही हमारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसी को ही हमने मॉनिटाइज करना है, इसी को ही सॉल्व करेंगे तो हम एक अगर हम बात करेंगे तो फिर हम जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो पहले बिजनेस के बारे नहीं सोचता, वो प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में सोचता है। सोल्यूशन जहाँ पे बता रहा हूँ उसमें जो है वो प्रिसाइज एग्रीकल्चर है, उसमें हमारा सप्लाई चेन एफिशिएंसी शामिल है, नेचुरल इनपुट्स हैं, नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स हैं जो कि बहुत बेसिक और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाली बात है ये सिर्फ हमारे इदारे से मुख्तस है, ठीक है। अगर कोई सुनने वाला इसमें ये कहे कि नहीं जी वो नेचुरल प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा है, फिलहाल इदारा या फिलहाल कंपनी या इस तरह से कर रहे हैं, तो वो उनका अपना मामला है भाई। हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं वो हम यूथ को और स्मॉल फार्मर को देख के डिजाइन करते हैं, तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। उसमें ज्यादा इतने कॉस्ट जो है वो बेयर नहीं करनी पड़ती उसमें। तो और क्लाइमेट अडॉप्टिव क्रॉपिंग हमें अडॉप्ट करनी होगी, ठीक है। हमें प्रिसाइज एग्रीकल्चर की तरफ आना होगा, हमें डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ आना होगा, सप्लाई चेन एफिशिएंट करनी होगी, और हमें जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तो इसमें आगे फिर फाइनेंस में हम घुस जाते हैं, तो वो फिर एक अलग बहस बीच में शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री है तो अगले की तरफ चलें या इख्तिताम की तरफ चलें, वो अब आपकी जिम्मे है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें, पर्सनली स्पीकिंग, मैं खुद इतना, मुझे अपनी फील्ड का बहुत शौक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बॉटनी या इस तरह की फील्ड में बंदा इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है, वो भी 1 घंटे के सेशन के अंदर। तो आई मतलब अ न्यू थिंग फॉर मी। उसके अलावा सर, दैट कंक्लूड्स द क्वेश्चंस वी हैड फॉर यू टुडे। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे ऑडियंस से थोड़े बहुत। ऑडियंस जो है फेसबुक पे हम लाइव है इस टाइम, तो वो कमेंट सेक्शन के लिए कमेंट कर सकते हैं, तो हम उधर से उनको डील कर सकते हैं। तो सर एक मेरा क्वेश्चन है कि हम जनाब, मैं ना इस तरह की चीजें पढ़ रहा था अभी। सर आपको लगता है कि हम जो वर्टिकल फार्मिंग जैसी टेक्निक्स हैं और जो हाइड्रोपोनिक्स जैसी टेक्निक्स हैं उनको पाकिस्तान में यूटिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की है इसके अंदर, वो कहते हैं कि जो चीज मट्टी से उगती है ना उसका उसकी अलग बात है, और जो चीज हम प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह से उगाते हैं ना, तो उसमें वो मजा नहीं है उनके नजदीक। तो आपको क्या इसके बारे में आपका राय आपकी? अच्छा, ये हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है ये आती है प्रिसाइज एग्रीकल्चर के वेंचर में, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज टू मच कैलकुलेटेड इन हाइड्रोपोनिक या एक्वापोनिक्स या परमाकल्चर, ठीक है। तो अब इसमें होता ये है कि जमीन का जायका तो होता है, ये तो है, ठीक है। मतलब आपके जो हाफजाबाद का चावल है, ठीक है, ये पूरी दुनिया में जो इसकी खुशबू है, जो अरोमा है इसका, वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे जो आम का जायका जो है वो भी पूरी दुनिया में और कहीं पे नहीं है। चाहे न्यूट्रिएंट्स देखें, एनपीके, वो नाइट्रोजन, पोटाशियम, बोरॉन, सिलिकॉन और ये तमाम जो हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, वो तो जमीन से ले रहा होता है, ठीक है। और ये प्लांट के टेस्ट में सिर्फ ये न्यूट्रिएंट्स शामिल नहीं होते, उसमें एडॉफिक फैक्टर शामिल होते हैं जो कि सॉइल से रिलेटेड होते हैं, उसमें सराउंडिंग्स शामिल होती हैं, उसमें वेदर कंडीशन शामिल होती हैं। जैसे कि अगर सर्दी ज्यादा ना पड़े तो जो मूली हमारी जो है सफेद मूली, ठीक है, उसका जायका मीठा नहीं होता। अगर सर्दी ज्यादा ना पड़े, ठीक है, तो किन्नू जो है वो मीठा नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किन्नू हम चाहे हाइड्रोपोनिक ना भी लगाएं कोई पौधा,
ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी लोकेलिटी चेंज कर देंगे तो भी उसके जायके में फर्क आएगा। ठीक है, तो ये फिर वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। अब जो देसी जो हमारे ओपन पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो सीड्स हैं उनसे जो प्लांट्स उगते हैं उनका जायका अलग है, जिसको देसी भी बोलते हैं। जो हाइब्रिड हमारे सीड्स हैं उनसे जायके में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें तो हैं। तो और इसमें बहुत से नेचुरल जो काजेज हैं, जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। उसकी न्यूट्रिशन पे, मतलब अगर हम बात करें कि हाइड्रोपोनिकली ग्रोन ककम्बर और जो जमीन पे उगाया गया ककम्बर है, उसके टेस्ट में तो फर्क हो सकता है लेकिन न्यूट्रिशन में फर्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन अगर हमारे सर्वाइवल का मसला हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमें टेस्ट पे कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, कि हम अगर उसको हाइड्रोपोनिकली ग्रो कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे कल को हम मरीख पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत टेस्ट पे। ठीक है ना, हाइड्रोपोनिक की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज उसमें ऐसा सच नहीं होता, ये वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ओपन पॉलिनेटेड प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसमें टेस्ट आपको मोर और लेस वैसा ही मिलता है जैसा कि आपकी जमीन से उगी हुई सब्जी या फल का मिलता है आपको। तो परेशान होने की बात नहीं है। राइट सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी बनाए हम, इफ इट शोज ऑन द स्क्रीन, कि कैन वी शिफ्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू अवॉइड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आगे जो फ्यूचर डिपेंड कर रहा है वो इन्हीं प्रैक्टिसेस पे डिपेंड कर रहा है। और एग्रीकल्चर में जो R&D हो रही है वो भी इसी बेस पर ही हो रही है, क्लाइमेट अडॉप्टिव क्रॉपिंग सिस्टम पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम, अच्छा इस वक्त ये भी सवाल की जिमन में ही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का एक अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से आती है। ठीक है, तो हमें वो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्लाइमेट या एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी इतनी नहीं है। ठीक है, जिनको हमें चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे हम इतना ज्यादा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर सिंथेटिक जो है वो डाल रहे हैं, तो उससे हमारे क्लाइमेट पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं, नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है, जिसको हम प्रिसाइज एग्रीकल्चर भी आगे जो एडवांस टर्म में चला जाता है, और फिर डिजिटल एग्रीकल्चर जो है, इनका मकसद ही यही है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का, क्लाइमेट चेंज पर जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये तो चल रहा है, इस पे तो काम चल रहा है। ठीक है, और मजीद अगर आप इस पे एक अलग सेशन रखना चाहें तो उस पे हम इस पे तफसीलन बात कर सकेंगे कि आप इसमें, हम इस पे कर सकते हैं कि आप इसमें मजीद कौन से वेंचर जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये काम इस पे हो रहा है। ठीक है ना, और हम शिफ्ट हो रहे हैं और हमें होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सर्वाइवल का मसला है। आप अभी से देख लें, हमारे किसान की नहीं आ रही, प्रोडक्शन कम हो जाती है, बारिशें आ जाती हैं, ये तो हमें अपनी प्रैक्टिसेस, अपना टाइम फ्रेम, हमें क्वालिटी ऑफ सीड और हम कर भी रहे हैं, और ग्लोबली इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है ना, और हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन है, अगर हम उसको, अगर आप परमिशन दे तो मैं उसको स्क्रीन पे शेयर कर देता जनाब, हूँ। सर जनाब, जनाब कीजिए। ये है कि हाउ वायबल इज how viable is modern farming for farmers in Pakistan given the current economic situation? जैसा कि बात हो रही है कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ठीक है ना, कन्वेंशनल फार्मिंग जो है, कन्वेंशनल क्रॉपिंग सिस्टम्स जो हैं, उसमें आपने देखा होगा किसान एहतजाज भी करते आपको नजर आएंगे टीवी पे। और गंदुम का मसला, शॉर्टेज का, चीनी का मसला, मिलों, शुगर मिलों का मसला, मतलब ये तमाम चीजें जो हैं ये जाहिर है कन्वेंशनल मेथड में है। मैंने जैसे कहा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रही है, इंटरनेशनल ग्लोबल डिमांड चेंज हो रही है, ग्लोबल मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है। तो हमें, जब तक हम अगर अपने आप को शिफ्ट नहीं करेंगे एडवांस प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, अच्छा एडवांस प्रैक्टिसेस का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत खर्चीली प्रैक्टिसेस हैं, आपने रोबोटिक्स की तरफ जाना है या आपने
जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है, हम उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग हमें लेके जाएंगे, ठीक है, आप इंजीनियर्स इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अभी हमने अपना कन्वेंशनल सिस्टम को अपना जो है उससे हमने जान छुड़ानी है, हाई रिटर्न क्रॉप्स पे जाना है, हमने फूड प्रोसेसिंग पे जाना है, जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग की बात हुई अभी आपने की, ठीक है, हमने वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक, मशरूम फार्मिंग, ये वो चीजें हैं जो आप बहुत कम एरिया से बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी जो है वो प्रोडक्शन लेते हैं, और क्लाइमेट के ऊपर भी कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं होता, मिनिमम होता है अगर होता है तो, ठीक है। और उसमें जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है इनकी। इवन के आपको मैं मजेदार बात बताऊं कि अगर आप 3x3 स्क्वायर फीट का आपके पास एक रूम है, मशरूम की अगर हम बात करें वो इंडोर होती है, ठीक है, तो आप है उससे अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रूफटॉप गार्डनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी सिर्फ 3 मरले की या कुछ स्क्वायर फीट की, मतलब 20 अच्छी खासी उससे इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोपोनिक की बात करें तो आपके 1 कनाल हाइड्रोपोनिक सेटअप से आपकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 1 एकड़ से 2 एकड़ तक की फसल के बराबर पैदावार आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ द मॉडर्न फार्मिंग इज वायरेबल। एक तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसके अंदर आपके पास लैंड होल्डिंग जो है या लैंड रिक्वायरमेंट जो है, एरिया जो है वो कम रिक्वायर्ड होता है, उसका आउटपुट जो है, जो रिटर्न है, जो प्रोडक्शन है वो हेल्दी भी है और नेचुरल भी है, और उसके ऊपर आपको मार्केट रेट भी जो है वो मुनासिब मिल जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग ही मतलब हमने अरे भाई ये इसी तरह है बिल्कुल, जैसे अगर नई विंडो आ जाती है, विंडो सिस्टम आ जाता है, तो हमें अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे वो विंडो सेटअप जो है वो अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो हम अपग्रेड नहीं करते सॉफ्टवेयर को, तो फिर तो कई हमारे वो दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे होते उसके ऊपर, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग इज अ न्यू सॉफ्टवेयर, एज एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें अपना ये फार्मिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये वायबल है। All right, sir. Before we bring our webinar to conclusion, one last question from you, from the audience, is how will the automation process in agriculture produce jobs for the youth, uneducated and educated both? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना, जो हमारी जनरेशन का जो दौर है ना, ये स्टैंडर्डाइजेशन का नहीं है, ये कस्टमाइजेशन का दौर है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन इज लाइक कि आप इतनी इतनी डिग्रीज कर लें और फिर उसके बाद आप एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करें एजुकेशन का, उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी, या उसके बाद आप एक खास काम करने के काबिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो, हमारे दौर में हमारी जनरेशन के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही मतलब जो है एक मैं कहता हूँ कि एक फास्ट भी है, और गोल्डन एरा है उनके पास लर्निंग का, ठीक है। वो स्किल सेट अपना डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक बात है कि एग्रीकल्चर में जॉब कैसे प्रोड्यूस हो, तो एग्रीकल्चर में तो पहली बात ये है कि जो एग्रीकल्चर करने जा रहा है वो एक्चुअली जॉब, एक तो वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा वो जॉब प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब अगर किसी के पास जमीन नहीं है, कोई कहता भाई मेरे पास जमीन नहीं है, भाई आपके पास लीज पे जो है आपको जमीन मिल जाती है 40,000 रुपए तक का, 35,000 से लेके 40,000 रुपए आपको सालाना पे जमीन 1 एकड़ मिल जाती है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। लेकिन अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं हम शहर में हैं, हम क्या करें, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फार्मिंग में आना चाहते हैं तो अर्बन फार्मिंग का एक अलग ह्यूज वेंचर मौजूद है जिसमें आप काम कर सकते हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग उसमें है, उसमें वर्टिकल फार्मिंग है, उसमें जो है नर्सरी प्लांट ग्रोइंग है, ठीक है। ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं और आप अपनी छत से एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जहाँ पे अनएजुकेटेड या एजुकेटेड की तो आजकल बात ही नहीं है ना, ठीक है ना। आप आइंस्टाइन से लेकर जो है वो बिल गेट्स तक को देख लें, ठीक है ना, जितने भी कामयाब लोग हैं वो उन्होंने स्किल सेट पे काम किया है, नो डाउट। हमें एक स्पेसिफिक पाथ जो है फॉलो करना पड़ता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, हमें एक्सपोश्योर होता है, पब्लिक डीलिंग आती है, ठीक है ना।
तो लेकिन स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दरअसल इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में एजुकेशन का एक मसला है, दरअसल वो स्किल सेट डेवलपमेंट की बात है कि स्किल सेट डेवलपमेंट की तरफ जो है फार्मर बहुत कम आते हैं। बात की जाए कि ऑटोमेशन प्रोसेसेस एग्रीकल्चर में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हों या डिजिटल एग्रीकल्चर बेस्ड हों, ठीक है, तो वो कैसे जॉब प्रोड्यूस करेगी, तो वो तो एक बहुत ही ह्यूज वेंचर है जो जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उसमें आईटी वालों का बहुत डिमांड है, ठीक है, ब्लॉकचेन उसमें है, उसमें सप्लाई चेन, फिर मैनेजमेंट वाले बिजनेस वाले आ जाते हैं। अब तो एमबीए एग्री बिजनेस भी हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन प्रोसेस अगर हम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। और इस वक्त ग्लोबली जो R&D हो रही है वो ज्यादा इसी पर ही हो रही है, ब्लॉकचेन पर हो रही है इसके, और रोबोटिक्स पे हो रही है, ठीक है। तो इंजीनियर्स जो हैं वो इस तरह का भी कोई सोल्यूशन जो है वो इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है कि जॉब्स, अगर हम जनरल बात करें एग्रीकल्चर जॉब के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो ये तो बहुत ही लीनियंट जो है क्या कहना चाहिए, सोर्स ऑफ अर्निंग है। लीनियंट इस तरह से कि हर एक के लिए वेलकमिंग है। आप अपने घर की छत से लेकर जो है आप जो है मैदानों तक, पहाड़ों तक, हर जगह भी आप जो है कल्टीवेट कर सकते हैं, थैंक्स टू द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है ये एक सर्वाइवल का मैटर है, और इसी में ही आगे हमें बढ़ना है, और इसी से ही हमारी बका है, इंसानियत की बका है, क्योंकि इट्स अ तो मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप एग्रीकल्चर में एज ए एंटरप्रेन्योर आना चाह रहे हैं, एज ए इनोवेटर आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जॉब, आप सिर्फ फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं अलाइड सेक्टर्स के लिए, और जॉब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यूथ के लिए, और इन एक्चुअल एवरीवन, फॉर एवरीवन, आप वुमेन के लिए जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, आप एवरी बैकग्राउंड के लिए जो है आप जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर एक प्रॉमिसिंग फील्ड है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ To और conclude मेरे your दिल में answer, जनाब कोई सवाल और मजीद है तो बताइए। सर, टू कंक्लूड योर आंसर, आपने इस तरह बताया है कि हमें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो वी डू नॉट हैव टू गो एज वर्कर्स बट रादर एज इनोवेटर्स टू क्रिएट जॉब्स as well as to procure a job for ourselves and to create some other jobs. एंड सर उसके अलावा सर जिस तरह आपने बताया कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हम दे सकते हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत फ्यूचर में होगा आगे जाके, और यूएवीज वगैरह को हम यूज़ करके जो मतलब आजकल यूएसए वगैरह में होता है कि यू यूज ड्रोन्स टू टारगेट सीड्स वगैरह प्लांट करते हो, तो दैट इज समथिंग दैट इज इन द फ्यूचर, नॉट इन द फोर्सिएबल नियर फोर्सिएबल फ्यूचर बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर। और इंशाल्लाह इफ वी वर्क हार्ड टुवर्ड्स इन दिस सेक्टर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कैन मेक अ लॉट आउट ऑफ इट। हमारे साथ जो फेसबुक लाइव पे जो लोग हैं वो बहुत फिट लोग हैं, मतलब हम तो वेबिनार में भी साथ एंटरटेन हो रहे थे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी थी फेसबुक के अंदर, तो फेसबुक वाले लोगों की तरफ से। Exactly. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। हमें हमें साथ इतना स्माइल करता रहा हूँ मैं पूरा साथ, इतना कुछ सीखने को मिला, और इतना अच्छा टाइम था कि इतना सब कुछ मतलब हंसाते रहे लोग इतना साथ साथ, Exactly. बहुत अच्छा दोनों का मिक्सचर रहा है। रहा। सर So, yeah. योर बैक। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई एम रियली फीलिंग डिलाइटफुल कि आप एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहे हैं, और आप जैसे ग्रेट माइंड्स इस पे ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और जिस तरह से हल्ट प्राइस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स रियली अमेजिंग फॉर मी एंड रियली अप्रिशिएबल। और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और इस ज़िमन में किसी भी तरह की कोई भी अगेन कोई मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। For joining, sir. Once again, for the last time, sir, thank you so much for joining, sir. We learned a lot, and we hope वो पड़ी होगी Facebook Live के ऊपर, तो you can go there. And this is it for today. Thank you all for joining. Allah Hafiz.